Start now. So yesterday we had started with the Competition Act. We discussed its preamble. Then we discussed how MRTP Act was there and why MRTP Act got repealed. And we had the Competition Act in picture. We also discussed the definitions, right? Some of the important definitions. We had covered all, but we had discussed in detail some of the important definitions like the definition of acquisition. The definition of acquisition is similar to the definition which is there in the takeover regulation, just to give a connect. But uh, the only thing additional that we have here is what it's the assets, acquisition of assets, and you have the enterprise. Now I'll also discuss one more thing why we have assets here. We'll link this with section 5 when we study combinations. We'll discuss this further. We discussed the definition of agreement, cartel. For cartel we had made one chart also. So this was the chart that we had made. Sorry, this is the wrong file I have opened. Yes, so this is the chart which we had made with respect to the cartel, correct? Further, we had discussed the definition of consumer, then the director general, then enterprise, then we had seen the definition of person, correct? Relevant market. Now relevant market is going to be relevant today. So relevant market is again further bifurcated in two parts. One is relevant geographic market, and then we have the relevant product market. Okay, now we are going to start with the chapter 2, which deals with particularly three things. One is, so basically, if I tell you Competition Act is just these three things. There are certain agreements which are prohibited. Then if you are into the dominant position and you're abusing, then it prohibits that. And then it regulates combinations. So combinations is nothing, it's just that mergers, right? The agreement which we had studied. So we'll discuss that. So in our today's lecture, our entire focus will be on section 3, that is the anti-competitive agreements. Some of the things which we are going to discuss here, you'll be able to correlate. And at the end, I have also compiled the past exam questions, right? So we will do all those past exam questions as well, right? And I've taken extract from module. So we'll try to cover section 3 and section 4 today in detail. So when we start with section 3, so section 3 says that it is or it prohibits anti-competitive agreements. ऐसा कोई भी agreement जो competition को curb करता है, ऐसे agreements को यहाँ पर मना किया गया है. और कंपटीशन एक्ट ऐसे अग्रीमेंट्स को क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा. सो इट सेज दैट नो एंटरप्राइज. एंड एक चीज ध्यान रखना, मेजॉरिटी केसेस जो आपको मिलेंगे, you'll get all those cases here only in these three part. Okay, so if I talk about even your multidisciplinary CS final के अंदर जब आप इसको पढ़ोगे, even then you'll get cases with these three only, right? So this is there in CS final. In corporate restructuring ये वहां पर डिटेल में आप कवर करोगे. But other than that, I'll tell you prohibition of certain agreements and abuse of dominant position. ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा? ये दोनों आपको मिलेगा in your lot of cases you are going to get it here, right? So आप यहाँ पे cases में check करो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. सो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में क्या बताया, दैट नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सो बेसिकली सबको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है. नो वन शैल एंटर, right? No one shall enter into any agreement with respect to what? With respect to production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or the provision of services. So काफी हद तक ये कार्टेल वाले डेफिनेशन के जैसा लग रहा है. अब देखो कार्टेल में भी यही था, प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ पर भी वही आ गया, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिससे कि क्या हो, विच कॉजेस or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. See this one line, you're going to get it.
throughout the Competition Act, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect within on the competition within the relevant market in India और within India. तो ऐसा कोई भी agreement में आप enter नहीं करोगे. So इसी को अगर restructure करके वापस से हम short में बोले तो हमारा क्या रहेगा, that no person, no enterprise or person or association should enter into any agreement which can be with respect to goods or which can be with respect to services. Services में तो एक ही है provision of services, but goods में चाहे उसके प्रोडक्शन के लिए आपने एक इस तरह का एसोसिएशन बनाया हो या आप ऐसे अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, सप्लाई के लिए आप एंटर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंटर कर रहे हो, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल, जिससे क्या हो, कंपटीशन मार्केट में क्या आ जाए, एडवर्स इंपैक्ट आ जाए. टेक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए, अगर ये हमने कल कवर किया था उबर एंड ओला. सो व्हाट डज उबर एंड ओला डू? उबर एंड ओला, when they merge together or they enter into an agreement that we will charge 30 rupees per kilometer minimum. Now in that case, ये क्या हो गया? You have entered into an anti-competitive agreement. Why? Because अभी कोई और यहाँ पर compete इससे करेगा ही नहीं, right? या इन्होंने इस तरह से market में set कर दिया that there are barriers to enter into the market. Correct? So ये आपके पास anti-competitive agreement हो गया. If you can link this with, तो आपने strategic management पढ़ा है? Have you studied strategic management? Have you studied strategic management? Strategic management में माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल आपने पढ़े? माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस में ये था ना, बैरियर टू एंट्री, रिमेंबर? सो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ठीक है, बट लीगली अगर आप देखोगे तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट सच अरेंजमेंट डू नॉट बिकम एंटी कॉम्पिटिटिव. करेक्ट? तो आपको ये ध्यान रखना है. फर्दर इट सेज दैट एनी अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू contravention into the contravention of the provisions in this subsection 1 will be what? Void. So first of all it says that you are not allowed to enter into such agreement. Secondly it says that even if you enter in such agreements, those agreements would be what? Those would be void. Further आप देखो यहाँ पे, an agreement entered into between the enterprise or association of enterprise, person or association of person, or between any person and enterprise. Are you understanding? वेब बना दिया पूरा, दो एंटरप्राइज के बीच में, एसोसिएशंस के बीच में, पर्सन्स के बीच में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बीच में, या फिर बिटवीन अ पर्सन एंड एंटरप्राइज, या कोई ऐसा प्रैक्टिस, राइट, विच आर कैरिड ऑन और डिसीजंस टेकन बाय एनी ऑफ देम इंक्लूडिंग कार्टेल. अब देखो कार्टेल को भी इंक्लूड कर दिया. कोई एक ऐसा चीज देखो जो कार्टेल के बियॉन्ड हो. आप देखो कार्टेल का जो डेफिनेशन है, दैट कार्टेल डेफिनेशन इटसेल्फ इज सो वाइड. But even if you don't fall into the definition of cartel, right, still you will get stuck here because यहाँ पर word कैसे आ गया? Any agreement. और agreement का definition अब आप देख रहे हो कितना important हो गया. Remember yesterday I had said that the definition of agreement is extremely important. अब आप देखो ये agreement में सब कुछ आ गया. Arrangement, understanding, right? Formal हो, informal हो, writing में हो, oral में हो, कैसे भी करके. So it's like catch all provision, right? So यहाँ पर अगर आप देखो what it is saying that any agreement entered into between the enterprise or association of enterprise or this entire web including cartel engaged in identical or similar trade of goods or provisions of services which directly or indirectly determines the purchase or sale price. Okay, this talks about some of the agreements which will be presumed that these agreements have appreciable adverse effect within the relevant market in India. और वो कैसे agreements है? अगर दो पार्टीज ए और बी इन दोनों ने एक agreement के अंदर एंटर किए, ठीक है, they can be association of enterprise, they can be enterprise, they can be person, right, whatever it is, it doesn't matter. So A and B, two parties have entered into an agreement. These two parties are dealing in the identical goods or similar goods, right? Or they are providing the similar services. And what they are doing, pursuant to this agreement,
दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज प्राइस और सेल प्राइस। ये किसका बात हो रहा है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। आया? ये उन सब का बात हो रहा है। इफ यू कैन जस्ट कोरिलेट, आप सब मिलकर एक साथ ऐसे, सी देयर आर सो मेनी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, ओके, एंड यू डिसाइड दैट व्हाट विल हैपन व्हेन देयर आर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स। देखो, इसको थोड़ा एसएम से कनेक्ट करते हैं और आप बहुत अच्छे से इसको समझोगे। मैं यहां पे बोलता हूं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे क्या है? रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, ठीक है। और यहां पर एक्स एंड वाई, ये दोनों कंज्यूमर है। ये दोनों क्या करते हैं? गुड्स को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं। नाउ टेल मी हु इज गोइंग टू हैव अ अपर हैंड, द सप्लायर्स और द प्रोड्यूसर्स? हु इज गोइंग टू हैव अ अपर हैंड? किसका अपर हैंड होगा? प्रोड्यूसर्स। व्हाई? बिकॉज इनको गुड्स खरीदना है, नंबर्स इनका ज्यादा है ना, नंबर्स इनका ज्यादा है तो फायदा इनके पास होगा। सो व्हाट दे डू, दे बोथ एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, और वो क्या बोलते हैं? अब हम रॉ मटेरियल अगर परचेज करेंगे, सो व्हाट दे वुड वांट टू डू, द प्रोड्यूसर्स वुड से दैट रॉ मटेरियल जितना सस्ता मिले उतना अच्छा, ठीक है। सो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे एंड दे वुड से लेट्स से 20 रुपीज पर केजी से ऊपर तो पे करना ही नहीं है। 20 रुपीज इज द मैक्सिमम प्राइस आई एम गोइंग टू पे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने क्या कर दिया? प्राइस को फिक्स कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज प्राइस और सेल प्राइस। नाउ टेक इट ऑपोजिट वे, दीज टू आर सप्लायर्स। नाउ लेट्स से दीज टू आर सप्लायर्स एंड ये इतने सारे प्रोड्यूसर्स है। अभी किसके पास मोनोपोली रहेगा? सी, एनी पर्सन हु इज इन द डोमिनेंट पोजिशन, राइट, कैन डू अब्यूज, बट हियर विदाउट डोमिनेंट पोजिशन ऑल्सो यू आर एंटरिंग इनटू एक्स एंड वाई। हो सकता है इंडिविजुअली ये डोमिनेंट पोजीशन में नहीं हो, बट जब ये ऐसे अग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं तो यहां पर ये मार्केट अब्यूज स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? सो अब ये क्या करेंगे? दीज टू आर सप्लायर्स। सो अर्लियर in the example I said that they had fixed the price that 20 rupees per kg is the maximum which we are going to pay. We are not going to pay more than that. Now what they are doing, since they have to supply the goods, they are saying that we will sell it for 50 rupees per kg. 50 रुपए से नीचे ना तो x बेचेगा गुड्स को और 50 रुपए से नीचे ना तो y बेचेगा गुड्स को। तो ये क्या हो गया? यू आर ट्राइंग टू लिमिट और यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस टाइप के अग्रीमेंट में अगर आप एंटर करते हो, इट इज बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम टू बी void. You don't have to prove, you don't have to prove what is the abuse here. You don't have to prove what is the abuse here. Here by default the abuse exists. ये आ रहा है समझ में आपको? ये आ रहा है समझ में? लॉ क्या करता है? सारे अग्रीमेंट्स को तो कवर नहीं कर सकते, तो कुछ अग्रीमेंट्स को बाय डिफॉल्ट लॉ प्रिज्यूम करके रखता है दैट दे आर व्हाट, दैट दे आर एंटी कॉम्पिटिटिव, और उसको यहां पर लिस्ट में डाल दिया। सो हियर CCI will not have to prove. See, otherwise अगर आप चेक करो सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में अगर मैंने आपको बताया यहां पे which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. So CCI will have to prove. अगर आप इन अग्रीमेंट्स में फॉल नहीं करते हो ना, तो CCI को अब्यूज प्रूव करना पड़ेगा दैट आपका ये अग्रीमेंट है, राइट, आपके बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, pursuant to this understanding this is the abuse. So that's how say, CCI is going to issue the show cause notice, और वहां पर फिर CCI बताएगा कि ये चीजें हैं, that's the reason we believe that your agreements are anti competitive, hence these agreements are void. So you'll have a chance to prove that no, it is not, or the onus of proof is always on the CCI. But in these cases जहां पर deemed provision आ जाता है, here the onus of proof is on the assessee. So कल को अगर x और y इस तरह के एक agreement में enter करते हैं, तो CCI by default क्या बोलेगा कि ये appreciable adverse effect है, नहीं है then show the contrary. Guys, this is clear? This is clear? आप सेम वे चेक करो, अगेन कनेक्ट यू दिस विथ द टेक ओवर रेगुलेशन। टेक ओवर रेगुलेशन में पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का दो डेफिनेशंस था, यस और नो? पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के दो पार्ट्स है, यू हैव सब क्लॉज 1 एंड यू हैव
सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? सब क्लॉज 1 सेज दैट these people, ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। और सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? दैट these people are deemed person these people are deemed person acting in concert. Now when the deemed person acting in concert आ गया, जहां पर भी लॉ में प्रिज्यूम कर लिया गया है या डीमिंग प्रोविजन आ गया है, where at that point of time it will be on the assessee to prove कि ऐसा नहीं है। guys, this is clear? ये समझ में आया आपको? राइट तो यहां पर आपको क्या बोला है? दैट आप सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स को ट्रेड करते हो, ठीक है, और आप वहां पर परचेज या सेल प्राइस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? डिटरमाइन कर रहे हो। तो इन दैट केस ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। दूसरा आपको क्या बता रहा है? दे लिमिट और कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट्स, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आप सिंपली चेक करो, अगर आप प्रोडक्शन को रोक सकते हो या कंट्रोल करते हो, क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ द प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड और इफ द प्रोडक्शन इज मेड लिमिटेड, इट इज रिड्यूस्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर आप अपने जो भी आप गुड्स को बना रहे हो उसके प्रोडक्शन को कम कर दो, डिमांड राइज हो जाएगा डेफिनेटली। सो आप आर्टिफिशियली क्या करोगे? डिमांड को क्रिएट करोगे। गाइस इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, राइट? लेक्चर के जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर भी वही है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब आप सी सर्च प्राइसिंग होता है ना ओला उबर में, पोस्ट 7 PM, पोस्ट 7 AM अगर आप ओला उबर बुक करो तो आप देखो सर्च प्राइसिंग शुरू हो जाता है पीक आवर्स में, यस और नो? सो यहां पर क्या होता है कि अगर आप, और सर्च प्राइसिंग उस वक्त क्यों होता है? बिकॉज एवरीवन इज डिमांडिंग द सेम थिंग। हर कोई कैब बुक कर रहा है उस वक्त और कैब्स है कम, सो ऑब्वियसली दे विल चार्ज सर्च प्राइसिंग। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। अगर आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हो, लिमिट करते हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? द प्राइसेस दे आइदर गो अप और द प्राइसेस गो डाउन। आप देखो ओपेक यही काम करता है। ये लोग अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तोड़ दे, सी आप अगर चेक करो आईएसआईएस को इराक में फंडिंग कहां से मिल रहा था? आईएसआईएस को इराक में फंडिंग मिल रहा था फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्योंकि इराक में देयर इज, वो मूवी थी ना अपना टाइगर जिंदा है, उसमें कहाँ काम करते हैं वो? इन दैट मूवी टाइगर जिंदा है, वो उसमें कहाँ काम करते हैं? वो रिफाइनरी में तो काम करते हैं ना, और वो पूरा आईएसआईएस के ऊपर ही प्लॉट किया हुआ था। सो आईएसआईएस वाज गेटिंग फंडिंग ओनली थ्रू क्रूड ऑयल। सो ओपेक ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम इतना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल इतना सस्ता हो जाए कि कोई आईएसआईएस से क्यों खरीदे। सी नॉर्मल जो प्राइस है लेट्स से दैट इज एट 80 रुपीज, $80 पर बैरल। और अगर आप यहां पर चेक करो आईएसआईएस बोला उनको तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है, तो वो बोलते हैं वी विल सेल इट फॉर $50 पर बैरल। नाउ अगर ओपेक मिल के प्रोडक्शन बढ़ा दे और प्राइस को $30 पर बैरल पे ले आए, तो ऑटोमेटिकली आईएसआईएस को इकोनॉमिकली आप तोड़ दोगे, और आईएसआईएस को जब फंडिंग नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आप टूट जाओगे। सो दैट इज व्हाट इज हैपेंस व्हेन यू एंटर इनटू दैट अग्रीमेंट। तो अगर आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हो या आप लिमिट करते हो, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वहां पर क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग विद द प्राइस। सो सीसीआई सेज दैट this will be presumed to be what? This will be presumed to be anti-competitive. Then it says that share the market or the source of production or provision of services by allocation of geographical area of market or type of goods or services or number of customers in the market or in any other similar way. अगर आप यहां पर बाइफरकेट कर देते हो कि चलो आप उस मार्केट को संभालो, मैं इस मार्केट को संभालता हूं, राइट ना? इफ यू आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप तो बात अलग है। सी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर इस तरह से करे, वो अपने अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाए बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यू ऑल नो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यस और नो? एसएम में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स सेटअप करते हो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट दो अलग अलग कंपनीज है, वो यहां पर क्या करते हैं? दे डिसाइड दैट ये एरिया रहेगा, लेट्स से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम,
एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये तीनों क्या करते हैं? एंड लेट्स से रिलायंस, रिलायंस पेट्रोलियम, सो ये चारों कंपनीज मिलकर डिसाइड करते हैं। रिलायंस बोलता है वेस्टर्न इंडिया में आप में से कोई भी नहीं आएगा तेल बेचने, सिर्फ मैं तेल बेचूंगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलता है मैं सदर्न इंडिया के अंदर तेल बेचूंगा, वहां पर आप में से कोई नहीं आएगा। इंडियन ऑयल बोलता है आई गो टू द ईस्टर्न साइड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सेज आई गो टू द नॉर्दर्न साइड। अब आप मुझे बताओ, ये आपने क्या कर लिया? आपने एरिया फिक्स कर दिया, राइट? कि आप मेरे मार्केट में नहीं आओगे, मैं आपके मार्केट में नहीं आऊंगा। तो ये अग्रीमेंट कैसा है? एंटी कॉम्पिटेटिव। ऑब्वियस सा बात है ना, आप कंपटीशन को रिड्यूस कर रहे हो। सी, बाय एंटरिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट, व्हाट रिलायंस इज ट्राइंग टू डू, रिलायंस इज इंश्योरिंग दैट वेस्टर्न मार्केट के अंदर उनके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं हो। सेम वे नॉर्दर्न मार्केट के अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज इंश्योरिंग दैट उनके पास कोई वहां पर कंपटीशन ही नहीं हो। सो दीज ऑल अग्रीमेंट्स आर व्हाट? दीज आर एंटी कॉम्पिटेटिव। Then it says that directly or indirectly, if it results in, ध्यान रखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा और अदरवाइज भी, bid rigging और collusive bidding, they all will be, ये देख रहा है, shall be presumed to have an appreciable adverse effect on the competition in India. Now I'll tell you, ये shall be presumed जो है, ये गलती से यहां पर आ गया, this should have been here, right? So don't think that ये shall be presumed सिर्फ इसके लिए है, shall be presumed is for all. ओके, सो अभी हमने यहां पर देखा एनी अग्रीमेंट, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डील इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस और नो? अब आप देखो, मैं यहां पे बात करता हूं आइडेंटिकल और सिमिलर। सबसेक्शन 4 अगर आप देखोगे, अभी हम बिड रिगिंग को भी समझेंगे यहां पर क्या होता है, यहां आंसर दिया हुआ है। सबसेक्शन 4 एक बार आप यहां पर देखते हैं, और सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? एनी अग्रीमेंट amongst enterprise or person at different levels of the production chain in the different market। अब ये ध्यान रखो, यहां पर subsection 3 it talks about the identical or similar goods, subsection 4 it talks about the different stages or the levels of production। आपने strategic management में, फिर एक और टर्म मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड वर्टिकल मर्जर, या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। हैव यू स्टडीड दैट? राइट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट identical or similar trade of goods, this is what? This is your horizontal agreements. Okay, and subsection 4, this talks about vertical agreements. Can you see the distinction between the two? Can you understand the distinction between the two? Horizontal agreements और यहां पर क्या है आपके पास? Vertical agreements। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बोला? That no one should enter into the anti-competitive agreements। अगर आप एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट्स में एंटर करते हो तो आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट वॉइड हो जाएगा। देन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ये डीमिंग प्रोविजन है, और डीमिंग प्रोविजन क्या बोल रहे हैं कि ये अग्रीमेंट्स है ही आपके एंटी कॉम्पिटेटिव। Subsection 3 talks about horizontal arrangements and subsection 4 it talks about the vertical arrangements। आप बताओ, does this make sense? Does this make sense? Right? Okay. अब इसमें देखो, यहां पर हम वापस आते हैं। सो बिड रिगिंग एंड कल्यूसिव बिडिंग का क्या मतलब होता है, हम पहले इसको समझते हैं एंड देन वी कम टू दिस प्रोवाइसो। सो बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग का क्या मतलब होगा? सो देखो, बिड रिगिंग मींस any agreement between enterprise or persons referred to in subsection 3 engaged in identical or similar production or trading of goods or provision of services which has the effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process of bidding। देखो, मैं आपको एक यहाँ पर इनफॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये समझाता हूं, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू देन अंडरस्टैंड दिस बेटर। Have you all seen that movie, Desi Boys? Have you all seen that movie? Akshay Kumar, John Abraham. Okay, so Diya is saying no. बाकी सब बोल रहे yes.
ओके आपको देखो फोरम भी नहीं देखा, देखो उसमें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सो जॉन अब्राहम इज बैडली इन नीड ऑफ मनी, वो बेचारा पढ़ा लिखा है, और अक्षय कुमार ड्रॉप आउट है, ठीक है। सो जॉन अब्राहम ही बैडली नीड्स द जॉब, तो वो क्या करता है, वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। बट जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, ही नोटिस अक्षय कुमार एक कंपनीज हिम। तो जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, ही सीज दैट देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर अगेन वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। तो उसको लग रहा है कि उसके चांसेस थोड़े यहाँ पर क्या है, कम है। तो अक्षय कुमार वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है, एंड ही स्टार्ट्स हिटिंग हिमसेल्फ, नॉट द एम्प्लॉयर, नॉट द इंटरव्यूअर, ही स्टार्ट्स हिटिंग हिमसेल्फ, प्लीज डोंट हिट मी, राइट, आप मारो मत। अब बाहर क्या होता है, और पेंटिंग्स वगैरह गिरा देता है और ये सब करता है, विच लुक्स एज इफ द इंटरव्यूअर इज हिटिंग अक्षय कुमार। सो बाकी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सारे उठ के बाहर चले जाते हैं, दे से दैट हमें यहाँ पर काम ही नहीं करना है, वो होता है ना, बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है। तो वो सारे इंटरव्यूअर वहां से निकल जाते हैं, जितने भी वहां पे कैंडिडेट्स आते हैं। तो बचता कौन है, सिर्फ जॉन इब्राहिम, राइट। और अल्टीमेटली फिर कुछ जॉब इंटरव्यूअर होता है, उसको जॉन इब्राहिम को ही जॉब देना होता है। ये आपने क्या किया, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, आई वुड से, बिड रिगिंग। सो फोरम, साक्षी, दिया, समझ में आया? एंड आई एम श्योर आयुष, जिल, वीर, आप लोग को रिलेट कर पाए होंगे बिड रिगिंग में क्या होता है। सो बिड रिगिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह से बिड करते हैं जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कंपटीशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। सो नो वन इज गोइंग टू कॉम्पीट विद अस। सो ये एक आपके पास बेनिफिट हो जाता है। सो ये अगर आपने बिड रिगिंग या कल्यूसिव बिडिंग आपने एंटर किया, इन दैट केस इसको क्या माना जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव। बट यहां पर एक प्रोवाइसो है, and the proviso says that provided that nothing contained in this subsection shall apply to an agreement which is entered by way of a joint venture if such agreement increases the efficiency. Are you understanding? अगर एक तो जॉइंट वेंचर के थ्रू आपने अग्रीमेंट्स में एंटर किया और उससे क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, इफ इट इज गुड देन इट इज फाइन, but otherwise if you enter into such agreement then it is bad, and that will be called as anti competitive. Guys, is this clear? Guys, is this clear, ये वाला पार्ट? तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बताया था, so if you enter into any joint venture, right, in that case यहाँ पर इनको एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाएगा, बट अदरवाइज सच अरेंजमेंट्स वुड बी कॉल्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव। ओके ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे। वी हैव सबसेक्शन 4, एंड सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एनी अग्रीमेंट amongst the enterprise or person at different levels or level of production chain in the different markets. So this is that vertically it is talking about in respect of the production of supply, distribution, storage, sale or purchase or trade in the goods and provisions of the services. इनको हम क्या बोलेंगे, these are एंटी कॉम्पिटिटिव। अब यहाँ पर भी आपको कुछ अग्रीमेंट्स बताएं, सर देयर आर टोटल 5 agreements which says that they are going to have appreciable adverse effect within the relevant market in India. Okay, and ये 5 agreements vertically connect करते हैं। Now just to give you a small idea, vertically क्या होगा, so अगर ये देखो यहां पर अगर मैं बताऊं x और y अगर ये आपस में एक अग्रीमेंट करे तो वो क्या बनेगा आपका, वो हॉरिजॉन्टल होगा। और अगर ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स बनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। सो जस्ट टू गिव दिस यू अ क्लियर आइडिया, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। सो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसके साथ कोई अग्रीमेंट करते हो तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, एंड दिस विल फॉल इन योर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। and vertical is this way, supply chain में। so suppose you produce, let's say, टायर, you produce टायर, तो टायर के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ पे, तो आपका जो रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, so let's say a rubber manufacturing company, this rubber manufacturing company is going to provide you the tire। तो आप ये रबर, ये सपोज करो दिस इज व्हाट, दिस इज जेके टायर, एंड यू हैव अ कॉम्पिटिटर हियर, लेट्स से
अपोलो टायर। तो जेके टायर अपोलो टायर अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट करते हैं कि वी विल limit the production or will control the price or whatever the scenario is, in that case हम उसमें क्या बोलेंगे that this is a anti competitive agreement, right? This is the anti competitive agreement and this is the anti competitive agreement under section 3 subsection 3, okay? But अगर जेके टायर ये रबड़ बनाने वाले कंपनी के साथ टाई अप कर ले, या फिर जैसे जेके टायर जो है टायर से फिर ये आगे कहाँ जाएगा, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएगा, कोई ना कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपोलो टायर जेके टायर से टायर खरीदेगा। सो अगर ये लोग इस तरह से अग्रीमेंट करते हैं आगे पीछे अपने सप्लाई चेन में, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल, एंड दिस विल गेट कवर्ड इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। ओके, सो जस्ट चेक हियर, एनी अग्रीमेंट अमंगस्ट enterprise or persons at different stages or level of the production change in the different market। अब देखो यहाँ पर ये 5 तरह के अग्रीमेंट्स आपको बताए हुए, टाई इन अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। एग्जाम में इनके ऊपर आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा। वैसे तो ये जो एक्सप्लेनेशन है जिसमें इनको समझाया हुआ है, ये सारे कहाँ पर समझाए हुए, ये एक्सप्लेनेशन एट द एंड है। सो इफ यू लुक एट द बेयर एक्ट यू विल फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ सेक्शन 3। बट मैंने क्या किया, सिंस एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, राइट, सबसेक्शन 4 के साथ कनेक्टेड है, सो आई हैव एडेड द एक्सप्लेनेशन हियर ओनली। तो आप देखो सबसे पहला क्या है, टाई इन अग्रीमेंट। टाई इन अग्रीमेंट, टाई इन अग्रीमेंट में क्या हो जाएगा, देखो स्कूल में ऐसा नहीं होता था कि आपने अगर शर्ट खरीदा तो आपको ट्राउजर खरीदना जरूरी है। यू कैन नॉट, यू कैंट जस्ट से दैट आई जस्ट वांट टू बाय शर्ट, हाइट नहीं बढ़ा मेरा, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ा बस खाली पेट निकल गया है, आई नीड शर्ट, ट्राउजर इज ऑल फाइन, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको शर्ट, सिर्फ शर्ट नहीं मिलेगा, आपको शर्ट के साथ में ट्राउजर खरीदना ही है। ये क्या हो गया, टाई इन अरेंजमेंट्स। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, प्रोडक्ट एक्स नहीं खरीद सकते, प्रोडक्ट एक्स के साथ आपको प्रोडक्ट वाई खरीदना ही पड़ेगा। ओके, यू हैव परचेस्ड लेट्स से अ कंप्यूटर, ठीक है, यू हैव परचेस्ड अ कंप्यूटर। अब आपका मन, आप उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओ, वेदर विंडोज और लेट्स से एनीथिंग, बट आप बोलते हो जो सिस्टम आपको बेच रहा है वो बोल रहा है आपको नहीं, विंडोज खरीदना ही पड़ेगा। सी टुडे दे सेल इट अलोंग विद द सिस्टम, वो बाय डिफॉल्ट आपका इंस्टॉल्ड ही रहता है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको सिस्टम और फिर विंडोज अलग से खरीदना पड़ता था, एंड दैट्स द रीजन यू विल फाइंड लॉट ऑफ पायरेटेड विंडोज हियर। सो अर्लियर ऐसा नहीं होता। सो दे टेल यू दैट सिंस यू हैव परचेज द सिस्टम फ्रॉम अस, आपको बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लेना ही पड़ेगा, हम सिर्फ सिस्टम नहीं बेचेंगे। या आपने सिस्टम खरीदा, आपको बाय डिफॉल्ट इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जैसे एमएस ऑफिस, इंटरनेट, यू नो दिस नॉर्टन एंटी वायरस सिक्योरिटी पर जो भी है, ये आपको परचेज करना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ कंप्यूटर, वो बोलते हैं नहीं, ऑप्शन नहीं है, आपको परचेज करना ही होगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ टाई इन अग्रीमेंट। और टाई इन अग्रीमेंट में यहां पर क्या हो जाता है, दैट आप गुड्स को परचेज कर रहे हो और उसके साथ में आपको एक ऐसा कंडीशन लगा रहे कि आपको इसके साथ में जो टैग्ड अलोंग है दूसरा गुड्स, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट्स होते हैं या इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, इन अग्रीमेंट्स को क्या बोला जाता है, एंटी कॉम्पिटिटिव, बिकॉज दीज आर अगेन कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं, टाई इन अग्रीमेंट। गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर, ये वाला पार्ट? राइट, वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखो आपको ना इसके बाद में ये समझना क्यों जरूरी है, देखो you'll get two types of question in exam। one, you are going to get a question what is tie-in agreement, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, but you'll get a question where they'll tell you, आप बताओ क्या यहाँ पे टाई इन अग्रीमेंट है या नहीं, एंड they'll not say tie in agreement, they'll give you a situation कि ऐसे ऐसे करके ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप बताओ इज इट अ वैलिड ट्रांजैक्शन और इज इट अ वॉइड ट्रांजैक्शन। So you'll have to mention that this is void and this is void due to what? Is it a tie-in agreement
or is it a exclusive supply agreement or exclusive distribution agreement or whatever it is. आप बताइए, this is clear. So tie in agreement में जब आपको बोला that let's say you have purchased a computer system, and with that computer system you are being asked to purchase some, let's say the antivirus or any other thing, you will have to purchase it. That is called as tie in agreement. Okay, so here I write that example as well for your reference. So I write it here. Let's say you have purchased a laptop, and laptop के साथ में आपको क्या बोला जा रहा है, that you will have to purchase, let's say antivirus. See, ऑप्शन दे वो अलग है. इफ इट सेज दैट अगर आप सिस्टम के साथ में एंटीवायरस खरीदते हो तो विल गिव यू 20% डिस्काउंट, विल गिव यू 50% डिस्काउंट, दैट्स अ सेपरेट इशू. बट यू कैन नॉट मैंडेट. ओके, यू कैन नॉट मैंडेट. रिमेंबर कल हमने व्हाट्सएप पे वाला ऑर्डर को डिस्कस किया था, तो व्हाट्सएप पे के ऑर्डर में भी क्या था, सीसीआई में यही तो बोला ना कि नो डाउट व्हाट्सएप का डोमिनेंट पोजीशन है, बट व्हाट्सएप किसी भी तरीके से मैंडेट नहीं कर रहा कि आपको व्हाट्सएप अगर यूज कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप पे यूज करना ही होगा. द यूजर्स आर स्टिल फ्री टू यूज वट एवर दे वॉन्ट टू. ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस, राइट. नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है. You have exclusive supply agreement. Now what happens in case of exclusive supply agreement? Here, any agreement restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or other person. अब इसमें क्या हो गया, अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं तो आप सिर्फ मेरे से गुड्स खरीदोगे और आप किसी और से गुड्स को नहीं खरीदोगे. ये हो गया आपके लिए क्या, दिस इज योर एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. फिर से एक बार पढ़ो. Exclusive supply agreement includes any agreement restricting in any manner the purchaser. ठीक है, purchaser. आप buyer को कहीं ना कहीं यहां पर क्या कर रहे हो, आप रोक रहे हो that during the course of trade you will not acquire goods from other person other than those which are provided by the seller. तो जो स्कूल यूनिफॉर्म वाला होता है ना कि आप जो यूनिफॉर्म खरीदोगे वो इसी दुकान से खरीदोगे, आप कहीं और से नहीं खरीदोगे. ये आपका क्या हो गया, दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. गाइस दिस इज क्लियर, गाइस इज दिस क्लियर, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, राइट. नेक्स्ट आप देखो यहां पर exclusive distribution agreement. So what happens in case of exclusive distribution agreement? Here the agreement includes, it includes any agreement to limit, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of the goods. तो आपने गुड्स अगर बना लिया, उसके बाद आप उस गुड्स को कहाँ बेचोगे, या आप गुड्स को लेकर आ गए हो, अब आप उस गुड्स को कहाँ कहाँ बेच सकते हो, उसके ऊपर अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एंटी कॉम्पिटिटिव. लेट्स से दिस पर्टिकुलर एरिया, अंधेरी एरिया, नो वन इज गोइंग टू गिव गुड्स टू एनीवन एल्स. अंधेरी में सिर्फ मेरा ही गुड्स बिकेगा. तो ये आपके लिए क्या हो गया यहाँ पर, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट. गाइस क्लियर, गाइस क्लियर ये वाला. देन अगर आप देखो आता है आपके पास क्या, रिफ्यूजल टू डील. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू डील, इसमें आप क्या करते हो, इट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट व्हिच रेस्ट्रिक्ट और इज लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू whom the goods are sold or from whom the goods are bought. अब इसमें क्या हो गया, आप लोगों को अगेन यहां पर आप रेस्ट्रिक्शन डालते हो कि आप अगर गुड्स को परचेज करोगे तो आप इसी तरह से करोगे, या फिर बेसिकली अगर इसने मना कर दिया तो आप आगे जाओगे, रिफ्यूजल टू डील. इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं रिफ्यूजल टू डील का, तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. जब रिफ्यूजल टू डील के अंदर यहाँ पे देयर वाज अ जजमेंट आल्सो ऑन दिस, मैं आपको चेक करवाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल गिव यू दिस जजमेंट, राइट. रिफ्यूजल टू डील में जैसे दिस इज टाइटन इंडस्ट्रीज का ये एक जजमेंट था, ठीक है.
सो टाइटन इंडस्ट्री का जो ये जजमेंट था, इसमें क्या बोला दैट an agreement which provides that the franchisees will not deal in the products or of goods or services of similar nature for a period of 3 years from the date of termination of the agreement within the radius of 5 years from the showroom. ये क्या हो गया? रिफ्यूजल टू डील अग्रीमेंट. यहां पर क्या हुआ? आपने टाइटन का फ्रेंचाइजी लिया, ठीक है, टाइटन वॉच का आपने फ्रेंचाइजी लिया या आपने टाइटन ज्वेलरी का फ्रेंचाइजी लिया. नाउ आपका फ्रेंचाइजी जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है वो, और क्या बोल रहा है दैट फॉर नेक्स्ट 3 years यू आर नॉट गोइंग टू डील इन एनी अदर गुड्स जो टाइटन ऑलरेडी डील कर रहा था फॉर अनदर 3 years विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर उसी सेम जगह पे. तो ये क्या हो गया आपके लिए? रिफ्यूजल टू डील. आपको अग्रीमेंट में एंटर करने से मना किया जा रहा है. तो ये भी क्या हो गया आपका? दिस इज अगेन योर वर्टिकल. आप बताओ ये क्या हुआ? ये क्लियर हुआ आपको? वर्टिकल agreement, refusal to deal. You cannot enter into agreement with some other person. See, one thing is common in all these agreements. कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? एक्सक्लूसिविटी सेट कर रहे हो. आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी सेट कर रहे हो कि एक्सक्लूसिवनेस आप लेकर आना चाहते हो सिर्फ मेरे साथ. तो वो सीसीआई नहीं चाहता कि ऐसा रहे. Last you have is the resale price maintenance. Now what happens in case of resale price maintenance? आपने गुड्स को बेच दिया और उसके बाद में जो गुड्स वापस बिकेगा उसके प्राइस को आप क्या कर रहे हो? आप ब्लॉक कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो दैट यू आर सेलिंग गुड्स टू यू. लेट्स से मैंने आपको मोबाइल फोन अपना बेच दिया, फिर आप क्या बोल रहे हो? जब ये मोबाइल फोन को आप दोबारा बेचोगे तो आप इसको इतने ही प्राइस में बेचोगे, इससे नीचे नहीं बेचोगे. तो ये क्या हो गया? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. सो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, विल डिस्कस दैट राइट नाउ. तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट to sell the goods on the condition that the price to be charged on resale by the purchaser shall be the price stipulated by the seller unless it is clearly stated that the prices lower than those prices may be charged. तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप प्राइसिंग के ऊपर एक ब्लॉकेज डाल रहे हो कि इसके इसके ऊपर आप प्राइस चार्ज नहीं करोगे, राइट. आप कहीं ना कहीं से गुड्स के रीसेल के ऊपर आप एक कंडीशन डाल रहे हो कि इससे ऊपर इससे नीचे आप कुछ भी इस तरह से करके प्राइसेस आप अगर डालते हो तो उसको क्या बन जाएगा? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. सी, वंस यू हैव सोल्ड द गुड्स द अदर पार्टी इज फ्री टू सेल द गुड्स एट व्हाटएवर प्राइस द पर्सन फील्स टू, बट इफ यू पुट दैट रेस्ट्रिक्शन देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. आप बताओ ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपको? ये पांचों अग्रीमेंट्स आपको क्लियर हुए? टाई इन अग्रीमेंट, exclusive supply agreement, exclusive distribution agreement, refusal to deal and resale price maintenance. अब आपको एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना है, ठीक है. यहां पर आपका एक अग्रीमेंट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, ठीक है, which says that you cannot sell or you cannot purchase goods from any other seller. आपको इसी से गुड्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है. जो आपका सप्लायर है आपको सिर्फ उसी से गुड्स खरीदना पड़ेगा, आप किसी और से गुड्स नहीं खरीद सकते. तो आप मुझे बताओ, मैंने डोमिनोज का पिज्जा का आउटलेट एक खोला, फ्रेंचाइजी लिया और मैंने डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या मैं वहां पे अपने मन से पिज्जा हट के पिज्जा बेच सकता हूं? जोइस पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, कैन आई डू दैट? व्हाई? अगर डोमिनोज मेरे को बोले कि नहीं आप यहां पे सिर्फ डोमिनोज का ही पिज्जा बेचोगे, डोमिनोज के अलावा किसी और का पिज्जा नहीं बेचोगे, तो ये तो एक तरीके से एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट नहीं हो गया? ओके, टेक और अनदर एग्जांपल. मैंने नाइकी का स्टोर खोला है, ठीक है, नाइकी के शूज अच्छे हैं, बट ट्रैक सूट के लिए लोग बोलते हैं मुझे एडिडास पसंद है, ठीक है. टी शर्ट्स के लिए दे से वी लाइक पूमा, राइट. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए दे से वी लाइक रिबॉक. सो इन दी नाइकी स्टोर कैन आई सेल
द प्रोडक्ट्स ऑफ रीबॉक, नाइकी, एडिडास, पूमा? अब आप बोलोगे नो। नो तो फिर मुझे बताओ, इजंट इट एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट? कौन रोक रहा है मेरे को? नाइकी वाला ही तो रोकेगा ना, कि हाउ कैन यू सेल, नो, यू नो, नाइकी के स्टोर में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो? बिकॉज वो फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट और उसका नाम यूज कर रहा है। ओके, सो मानव इज सेइंग क्योंकि आप एक फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट में हो। बट आप मुझे एक बात बताओ मानव, क्या यहाँ पे फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट और को कहीं पर भी एक्सक्लूसिवनेस दिया है क्या? आप देखो यहाँ पर प्रोवाइजो ऐड कर दिया था, और प्रोवाइजो ऐड करके क्या बोला? जॉइंट वेंचर्स को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, और उससे अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होता है तो यहां पर भी आपको क्या चाहिए? यू नीड अ एक्सेप्शन वेयर यू वुड से दैट in particular cases, even if there is a tie-in agreement, even if there is a resale price maintenance, even if there is a exclusive supply agreement, whatever it is, वो यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। और ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर आपने नाइकी का एक्सक्लूसिव आउटलेट अगर ओपन किया है, दिस मीन्स नाइकी का एक्सक्लूसिव सामान ही वहां बिकना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर, यू नो, द अदर गुड्स शुड नॉट बी अलाउड टू बी सोल्ड हियर, यस और नो? सो यहां पर आपके पास आता है सबसेक्शन 5, राइट? एंड दिस सबसेक्शन 5, what it says that nothing contained in this section, now take into consideration they've used the word this section, so it's not just particular to resale price maintenance or horizontal or vertical arrangement. Entire subsection 3, entire section 3, nothing contained in this section shall restrict the right of any person to restrain any infringement. What do you mean by infringement? The infringement of, to impose reasonable condition as may be necessary for protecting any of his rights which have been or may be conferred upon under copyright, patent, trademark, right, geographical indications of goods act, design act, semiconductor integrated circuit layout design act. So इन्फ्रिंजमेंट किसका होता है? इन्फ्रिंजमेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और ये सारे राइट्स आपको क्या देते हैं? दे ऑल गिव यू आईपीआर। दीज ऑल आर व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ऐसे अग्रीमेंट्स में आप एंटर करते हो, such agreements would not be called as anti competitive. आप बताइए, is this clear? Is this clear? Then अगर आप यहां पे चेक करो तो आपके पास आता है the right of any person to export goods from India to the extent to which the agreement relates exclusively to the production, supply, distribution or control of goods और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट। तो यहां पर भी क्या बात हो गया? यहां पर भी क्या बात हो गया कि अगेन nothing contained in this section shall restrict, read it this way, nothing contained in this section shall restrict the right of any person to export goods from India। तो देखो सीसीआई क्या बोलता है, ये मेरा इलाका, मैं यहाँ का जयकांत शिगरे, मेरे यहाँ पर गंदगी मत करो, यहाँ पर कुछ मत करो। इधर आप प्रोडक्शन में अगर इस तरह से अग्रीमेंट करते हो, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट करते हो, तो मुझे प्रॉब्लम है। इंडिया के बाहर जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम CCI, नॉट CCW, आई एम CCI, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इंडिया के अंदर अगर आप ऐसे अग्रीमेंट्स करते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंडिया के बाहर अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट विद इन इंडिया don't get that exclusiveness with me until unless your exclusiveness is protected by this intellectual property rights. Does this make sense, guys? Does this make sense? ये पूरा कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये मैंने आपके मॉड्यूल से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ऐड किया है। सो बेसिकली ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट योर बेयर एक्ट ओनली। मैंने बेयर एक्ट पीडीएफ को पहले वर्ड में कन्वर्ट किया,
अपने हिसाब से उसको रीशफल किया. आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम मॉड्यूल, देन सम ऑफ द प्रैक्टिकल केस लॉस एंड सम ऑफ द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हियर. सो आप यहाँ पे देखो सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड ways in which collusive bidding or bid rigging can happen. उसमें ये आते हैं. See, these are the types of bid rigging and collusive bidding. Agreement to submit identical bids. सब एक जैसे bids वहां पर डालते हैं, एक ही जैसा प्राइस. नाउ द प्रॉब्लम इज, आपने सपोज करो टेंडर मंगवाया that you want the supply of, let's say anything, it could be potato. आपको 4 पोटैटो डिस्ट्रीब्यूटर्स बिड करते हैं एंड एवरीवन बिड्स यू फॉर 20 रुपीज ओनली. ये क्या हो गया आपका बिड रिगिंग. Then agreement as to who shall submit the lowest bids, an agreement for the submission of cover bids. मतलब ए बी सी डी 4 जनों ने मिलके टेंडर भरना है. नाउ दे डिसाइड दिस टाइम ए is going to bid the lowest, B, C, D is purposely they are going to bid for a higher amount so that A gets the contract. Now next time A, C and D are going to bid at higher price so that by default B gets the contract. So ये भी क्या हो गया आपका collusive bidding और bid rigging. Then voluntary inflated bids जिसको हम बोलते हैं, this is again same thing. ये जो यहाँ पर बताया हुआ है ये इसी के साथ है. Then agreement not to bid against each other. ठीक है, जिधर ए ने बिड कर दिया उधर बी सी डी बिड नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो गया बिड रिगिंग. Then agreement on common norms to calculate the price or terms of the bids. Then agreement to squeeze out the outside bidders. Agreement designated bid winners in advance on rotational basis. तो मैंने जैसे आपको बताया, और ऑन अ ज्योग्राफिकल लोकेशन बेसिस कि नॉर्थ इंडिया में अगर आया तो ए को ही बिड मिलेगा. ठीक है, ईस्ट इंडिया में आया तो सिर्फ बी को ही बिड दोगे, वेस्ट इंडिया में आया तो सी को ही दोगे, और साउथ इंडिया में आया तो सिर्फ डी को ही बिड दोगे. बिड्स किया आपने किया. सो दीज ऑल काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर बैड. देन कस्टमर एलोकेशन बेसिस, कवर बिडिंग, बिड सप्रेशन, बिड विड्रॉवल. आप बिड्स तो भेजोगे लेकिन फिर बाद में क्या करोगे, अपने बिड्स को विड्रॉ कर लोगे, तो बचेगा कौन, खाली एक इंसान, वो है ए, जिसको आपको बिड देना पड़ेगा. बिड रोटेशन, नॉन कंफॉर्मिंग बिड्स. तो इस तरह के अग्रीमेंट्स में अगर आप एंटर करते हो तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए आपके बिड रिगिंग के. डज दिस मेक सेंस? और ये आपका मॉड्यूल से है, ये दोनों चीज जो है यहाँ पर ये आपके मॉड्यूल से इटैलिक्स में. So what is anti-competitive agreement? So anti-competitive agreement is an agreement having an appreciable adverse effect on the competition, and anti-competitive agreements in India, they include but are not limited to. Do you understand this? Include but not limited to. So this means what? ये हो गया आपका ये basically this is the inclusive list. So these are just the illustrative list. ध्यान रखना, these are just the illustrative list, which means you can have some more anti-competitive agreements. So यहाँ पर क्या है, agreement to limit the production or supply, agreement to allocate markets, agreement to fix price, bid rigging, collusive bidding, then tie-in agreements, correct, exclusive supply distribution agreement, right, इसको exclusive dealing agreement भी बोलते हैं, then resale price maintenance or refusal to deal. Guys, is this clear? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको, राइट? ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर. ओके, लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू पेज नंबर 11. Okay, now I want you all to read this case. ठीक है, ये आपके पास एक कॉमन ग्राउंड है. ठीक है, दिस इज द कॉमन ग्राउंड दैट यू हैव. ये आप मान लो फैक्ट ऑफ द केस. इसके साथ में इसको आप रीड करोगे एंड यू विल हैव टू आंसर व्हाट इट इज. फिर इसके साथ में आप इसको रीड करोगे एंड यू विल हैव टू आंसर. सो दीज आर इंडिपेंडेंट केसेस, दीज आर इंडिपेंडेंट केसेस. ये आपके पास मेन फैक्ट ऑफ द केस है. नाउ फर्स्ट केस इन पॉइंट जो आपके पास है, आपको बताना है कि इज इट वॉइड और इज इट नॉट. इफ इट इज वॉइड or anti-competitive, then on what grounds? So Super Track Limited
a manufacturer of footwear entered into an agreement with city traders for the sale of its products. Now, the agreements include, among others, the following clauses. और पहला पॉइंट यहां पर क्या बता रहे हैं that the city trader shall not deal with goods, products, articles, whatever name called, manufactured by any person other than Super Track Limited. ये कौन से टाइप का अग्रीमेंट हो गया? ये कौन से टाइप का अग्रीमेंट हो गया? एंड इज इट एक्चुअली एंटी कॉम्पिटिटिव और नॉट? This is what? Exclusive supply agreement. Fantastic. This is your exclusive supply agreement. Correct. Okay. Now, next type of agreement which they have entered, they say that city trader shall not sell the goods manufactured by Super Track Limited outside the municipal limits of the city of Madurai. What is this? Very good. This is what? This is exclusive distribution agreement. Right? Then, what about this? That the city trader shall sell the goods manufactured by the Supertrack Limited at a price as embossed on the price label of the footwear. However, city trader is allowed to sell the footwear at a price lower than those embossed on the label price. ओके सो दर्शन ने लिखा है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और आगे क्वेश्चन मार्क है. अदरवाइज साक्षी, दिया, नियति सब ने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस बताया. Is it actually resale price maintenance? Let's read resale price maintenance once again. Does this make sense? Right. Now tell me, is it resale price maintenance or not? So this is not resale price maintenance. Okay. Why? Because what they have mentioned, they are allowed to sell the footwear at a price lower than those embossed in the price label. So then it is not a resale price maintenance. आप बताइए, is this clear? Is this clear? चलिए, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो. And now you have to answer for this. That the manufacturer of electrical goods stipulated to his retailer that they should not sell the goods below the minimum price and above the maximum price, not with the variation in the stipulated price. Is it resale price maintenance? And you have to answer why. If yes, then you will have to explain why.
So Manav is saying because it is a particular limit. Jigisha said price restraint. Forum is saying that it is resale price maintenance as the seller decides the limit. Very good. So you have picked up the point. This is what? This is resale price maintenance, right? And what happens in case of resale price maintenance, like how you both of you have mentioned, Manav and Jigisha and Forum, rather all three of you have mentioned that you have decided the limit, the upper price also and the lower price also. In that case, ये क्या बन गया आपका resale price maintenance. Hence, this is going to be what? This is going to be anti-competitive. Okay. So आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? When you will, okay, Darshan has mentioned it is not stated that the price lower those may be charged. Exactly. So maximum है minimum दोनों बता दिया ना. अगर आप यहाँ पर देखो मिनिमम प्राइस भी बता दिया और मैक्सिमम प्राइस भी आपको बता दिया और जो भी इनको बेचना है वो इसी के बीच में बेचना है. सो ये आपका क्या हो गया? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. ये आ गया. सो आप इसका जब आंसर करोगे सो व्हाट यू गोइंग टू राइट? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस? हियर यू फिक्स द प्राइस और यू फिक्स द रेंज. यस और नो? और यहां पर रेंज कैसे आ गया? रेंज comes something like this, that you have stated the minimum price and the maximum price. ये आपने बता दिया, ये आपने रेंज यहां पर फिक्स कर दिया. और अगर आप इस तरह से वर्कआउट करते हो तो ये क्या बन जाएगा? एंटी कॉम्पिटिटिव. सो दिस इज अ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. सेकेंडली, आप यहां पर और एक चीज मेंशन करोगे दैट अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें गिवन होता है, ठीक है, सो यहां पर जो भी आपका डीलर है, ठीक है, या जो भी आपका सेलर है, डीलर कैनॉट सेल बियॉन्ड एमआरपी. यस और नो? So if MRP is mentioned, then dealer cannot sell beyond MRP, but he can sell lower than that. Yes or no? आप देखते हो कई बार आपको होता है एमआरपी से कम प्राइस आपको वो चार्ज करता है. सो एमआरपी से कम चार्ज कर सकते हो, एमआरपी के बियॉन्ड नहीं जा सकते अगर एमआरपी में गिवन हो तो. बट यहां तो आपने क्या कर दिया? मिनिमम मैक्सिमम पूरा ही फिक्स कर दिया. यू हैव फिक्स द एंटायर रेंज. सो द एंटायर अग्रीमेंट बिकम्स व्हाट? एंटी कॉम्पिटिटिव. चलो फैंटास्टिक, यू ऑल हैव आंसर्ड इट करेक्टली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर जो आता है, दिस इज ये वाला. अब आप मुझे बताओ, इज इट causing appreciable is it causing appreciable adverse effect or not? So Dia is saying yes, forum is also saying yes. Okay, तो अभी ध्यान रखो, सिर्फ यस, जेल इज ऑल्सो सेइंग यस. अब मुझे यस का रीजन भी बताओ. सिर्फ यस नो से काम नहीं चलेगा ना. काश हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता. आप बताओ व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव हियर? A truck manufacturing company proposes to enter into distributorship agreement requiring the dealer not to sell trucks of other manufacturers and also not to sell the trucks outside the territory assigned to them. तो यहां पर किस चीज का गड़बड़ किया? Very good. So here it is exclusive supply agreement. There is a exclusive supply agreement. See, he is a distributor. तो डिस्ट्रीब्यूटर में आप यहां पर चेक करो, आप रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो पर्टिकुलर इस एरिया का रहता है, ठीक है. बट यहां पर आप जो ये काम कर रहे हो दैट किसी और मैन्युफैक्चरर के ट्रक्स को आप नहीं बेचोगे, वो क्या हो गया आपका? एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट. हेंस दिस विल बी व्हाट? एंटी कॉम्पिटिटिव. एंड हेंस इट विल बी व्हाट? void. So here it is the exclusive supply
agreement. Okay, this is exclusive supply agreement. और ये क्या है आपका? This is anti competitive, and hence this will be what? Void. And why this is void? Because it is, you know, causing, it is either caused or is likely to cause, or it has caused appreciable adverse effect on competition. Appreciable adverse effect on the competition. AAEC, ये term आप ध्यान रखना. This is a standard term abbreviation which is used, but don't use it in exam. However, for your understanding, you can use that. आप बताइए. This is clear? Is this clear? अब आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में यहाँ पे प्राइसिंग. सो ये आप अगर क्लियर कर पाए तो आई थिंक यूल बी एबल टू get through lot of exam questions here. Now let's go to subsection 4. Okay. Okay, so subsection 4 is again itself is, it's a huge section, right? Just give me 1 minute.